Once again, good evening to everyone here present here. My first request to everyone, those who are there in the group already, that please join on time. Still, I'm finding that there are students who are trying to join and they are getting logged out. I don't know because of network reason or I don't know why. So please make sure that you are ready beforehand. Okay, everyone, and please make sure that the part which I said, the first part which I mentioned last day was punctuality. जो कि मुझे थोड़ा सा बहुत लोगों से की तरफ से देखने को नहीं मिला, हो सकता है बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन की मैं लिंक शायद शेयर करूंगा, हो सकता है ऐसा कुछ हो, बट मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि जो लिंक है, जो ग्रुप में जो लिंक शेयर किया हुआ है, एवरी डे यू आर गोइंग टू यूज द सेम लिंक. Please do not wait for the link to come in the back in the group and then you will be joined. No. 4 p.m. Suppose the time is 4 p.m. Please join before that. There is a waiting room. I can see that there were many students who had joined in advance. I'll call out the names also. There were many students and that's good. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ज्वाइन किया था, जिया बदानी और बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों ने पहले ज्वाइन किया था, मुझे पता है. So as this is the first class after the introduction class where I had explained you like कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. आज का हमारा चैप्टर होगा, अगर देखा जाए क्लास 11 में का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री है, आई अकॉर्डिंग टू मी सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजीएस्ट है. यहां से तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा मैथ्स में अगर देखा जाए तो. लेकिन आई बिलीव दैट देयर आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 10 whose most of the basic parts are not clear, basic concepts are not clear. So today, before going to this particular chapter trigonometry, I am going to highlight few basic concepts of class 10 and then we will come to the topic trigonometry. I know that 90% of the things which I am going to teach today you all have already studied in class 10, but please make sure that you all copy what I am teaching right now, because these things are very much required in class 11. और जो मैं यहाँ पे टर्म्स में जो यूज करूंगा मैथ्स में, वो सारे टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है. So the thing which I am going to start before starting trigonometry, please everyone make sure that you have to keep note in your formula copy. जो पहला फॉर्मूला तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए वो मैं आज अभी स्टार्ट कर रहा हूं उस टॉपिक से, और वो क्या है? अलजेब्रा. सबसे पहला चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अलजेब्रा से. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि अलजेब्रा में सबसे पहला, सो टुडेस टॉपिक इज फर्स्ट बेसिक कांसेप्ट्स. After completing this basic concepts, we will move on to the first chapter, that is trigonometry. So I want your 100% attention here. And when I am writing anything, your task will be to follow first, don't copy. मैं सबके को देख रहा हूँ, कॉपी कोई मत करना, ठीक है? तो ध्यान देने का सबसे पहला चीज, what is a constant in mathematics? कांस्टेंट क्या होता है मैथ्स में, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है. देखो सिंबल्स जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, सिंबल whose value remains constant, remains same, is called a constant. Remains constant, I cannot say. What is the meaning of constant in mathematics? Symbols whose value remains same is called a constant. So for example, like this is a symbol which denotes 2. इस पर्टिकुलर सिंबल को मैं कोई और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कांस्टेंट. 3 इज अ कांस्टेंट बिकॉज जो सिंबल यहां पे मैंने जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो क्या चीज को डिनोट करता है? 3 को ही, वैल्यू 3 को ही डिनोट करता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब होता है वो चीज जिसका वैल्यू वो खुद उस सिंबॉलिक नोटेशन से ही डिनोट किया जाता है. वो खुद के सिंबॉलिक नोटेशन से ही एक पर्टिकुलर चीज का वैल्यू को डिनोट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट. बिकॉज वो बदलता नहीं है, कुछ भी बदल जाए बट उसका वैल्यू उस पर्टिकुलर सिंबॉलिक नोटेशन से ही डिनोट किया जाए. ऐसा नहीं है कि मैं 2 को आज इस सिंबल से डिनोट करूंगा और कल को किसी और सिंबल से डिनोट करूंगा. एवरी टाइम
दस व्हेन आई से वैल्यू 2, 2 को हम इस पर्टिकुलर सिंबल से ही डिनोट करेंगे. सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट. सो कांस्टेंट मींस व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड, ओके, व्हिच डज नॉट चेंजेस. या हम ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स जिसका वैल्यू उस पर्टिकुलर सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट बोलते हैं. वो खुद में ही एक पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट. सो दिस इज अ कांस्टेंट वी कैन से. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट? व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड, which remains fixed is called a constant in mathematics. तो जिस सिंबल के वैल्यू को हम लोग जैसे कि ये सिंबल का वैल्यू जो है 2 रिप्रेजेंट किया करता है, तो ये क्या है? कांस्टेंट. नेक्स्ट, नंबर 2, व्हाट इज अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स? When we say variable, the very simple way to understand variable is in class 10 you had come across in every chapter. कोई भी चीज अगर मुझे नहीं पता रहता था, जैसे कि मान लो एक सर्कल चैप्टर का अगर हम बात करें, तो अगर मुझे रेडियस नहीं पता होता था तो हम क्या करते थे? लेट r be the radius of the circle, let r be the radius of circle, let v be the volume. तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक पर्टिकुलर सिंबल से एक अननोन क्वांटिटी को डिनोट करते थे जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता था. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी फाइंड, एक सिंबल, ठीक है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं मैथमेटिक्स में. सो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल मींस व्हिच चेंजेस द वैल्यू ऑफ सिंबल, the value which changes is called a variable, we can say. Is called a variable. मतलब मैथमेटिकल सिंबल जिसका वैल्यू वो नहीं डिनोट करता है. क्या है? जैसे मान लो x क्या है यहाँ पे? अननोन क्वांटिटी. x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो अननोन क्वांटिटी. जैसे मान लो सपोज r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, और खोजने के बाद रेडियस कभी 2 आ जाता है, किसी सम में 3 आ जाता है, वो डिपेंड करता है सम टू सम. सो व्हाट वी फाइंड, सिंबल जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल कहते हैं इसको. सो सिंबल जिसका वैल्यू वो खुद से नहीं डिटरमाइन किया जाता है, उसके अंदर क्या स्टोर होगा उससे डिटरमाइन किया जाता है, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है. जैसे x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल बिकॉज x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में. 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, एंड सो ऑन. सो x इज अ वेरिएबल. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, term. What is the meaning of term in mathematics? term का मतलब जानना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में. बट टर्म स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत सारा बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं मैथमेटिक्स में कि क्या क्या होता है. बेसिक ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन, सबट्रैक्शन. दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स. मतलब ये सारे को यूज करके हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टर्म? लिसन एवरीवन. टर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, वेरिएबल. अगर मान लो कांस्टेंट और वेरिएबल को हम अगर डिवीजन से या इनटू से हम अगर कनेक्ट कर दें तो वो क्या होता है बताओ? एक टर्म होता है. जैसे कि मान लो 2 into y, सपोज लेट्स से 2 into y डिवाइडेड बाय x, ये मिला के क्या हो गया? एक टर्म हो गया, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2y by x लिख सकते हैं. सो दिस इज अ टर्म. प्लीज मेक श्योर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टर्म. टर्म मींस अ कांस्टेंट इज आल्सो अ टर्म. ठीक है, एक कांस्टेंट भी अकेले एक टर्म होता है, एक सिर्फ वेरिएबल भी अकेले में एक टर्म होता है, या बहुत सारे कांस्टेंट और बहुत सारे टर्म्स को अगर हम इनटू या डिवीजन से कनेक्ट कर रहे हैं, इनटू या फिर डिवीजन, प्लस या माइनस से नहीं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड अ टर्म. जैसे कि ये हो गया 6x डिवाइडेड बाय y, सो दिस इज अ टर्म. इज दिस क्लियर एवरीवन? आई कैन नॉट से दैट 2x plus 3 इज अ टर्म. नहीं, यहां पे कितने सारे टर्म्स है बताना एक बार. यहां पे कितने सारे टर्म्स है? 2 टर्म्स है. एक है 2x और दूसरा क्या बताना एक बार? 3. तो यहां पे 2 टर्म्स है. तो ये सारे टर्म्स मतलब ये सारे जो
मतलब ये जो चीज है जैसे कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स मैथमेटिक्स में जानना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग क्लास 11 के टॉपिक्स। ओके, तो पहले एक बात मैं बता दूं तुम लोग से, एक बात बताओ यहाँ पे कितने सारे टर्म्स है बता सकते हो तुम? 1 1। अगर मान लो मैं यहाँ पे पूछूं 3 - 2/x, यहाँ पे कितने सारे टर्म्स है बताओ तो? 2 समझ में आया तो बात? एक काम करो फटाफट, जो भी मैंने अभी बोर्ड वर्क किया है उसको फटाफट अपने अपनी कॉपी में कॉपी करो, ठीक है? स्टार्ट एवरीवन। आफ्टर नोइंग व्हाट इज अ टर्म, ठीक है, तो फिर एक्सप्रेशन क्या होता है? लेट्स स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? लेट्स स्टार्ट। Now just everyone note down. A term is also an expression, or terms connected by plus or minus sign is called is also an expression. जैसे कि अगर ध्यान देना एक बार, जैसे कि ये भी एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स है? एक ही टर्म है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने सारे टर्म्स है? 2 टर्म्स है, देखो 1 और 2। तो टर्म और एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया? तो एक्सप्रेशन मतलब समझ में आया? तो वो एक्सप्रेशन क्या चीज से बनता है? टर्म से बनता है। तो फिर टर्म्स और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि मान लो ये एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 टर्म्स है, तो समझना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस एक्सप्रेशन में एक टर्म है, दिस इज नॉट अ टर्म, दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 टर्म्स, one is plus 2x square and the second one is plus x. All right everyone? Okay, next. Number 5, polynomial. Now this I want to hear from you all. Anyone, can you explain me what is the meaning of a polynomial? Anyone? Yes, you can unmute yourself and speak, no problem. An expression which has more than. See, polynomial is an expression actually where the power of variable is a whole number. What is the meaning of a polynomial? Polynomial is an expression only where the power of variable is a whole number. All right everyone? Whole number means उसका पावर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, उसका पावर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, उसका पावर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, और उसका पावर -2 नहीं हो सकता है। क्या -2 होल नंबर है? नहीं। क्या -3 होल नंबर है? नहीं। क्या -1/3 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन जिसके पावर जो होता है, उसका जो पावर है वेरिएबल का, वो क्या होता है? होल नंबर होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। एंड याद होगा तुम लोगों ने क्लास 10 में एक चैप्टर भी किया था इस तरह का, याद है ना? फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, आईसीएससी स्टूडेंट्स, राइट? तो वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा कि जो भी पॉलिनोमियल था, px, gx, rx, उसमें जो पावर होता है x का, वो क्या था? याद करो तो तुम लोग, 4/3, 3/2 ऐसा कुछ हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। वो कैसा पॉलिनोमियल था बताओ तो? उसके पावर में जो था वो या तो 2 होता था, या 3 होता था, या 4, मतलब पावर जो है वो क्या होता था? होल नंबर होता था। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। सो लिसन हियर एवरीवन, if I say p of x is a polynomial, p is a name, inside this bracket x means कि वो polynomial, ब्रैकेट के अंदर x का मतलब क्या है? कि वो polynomial किस वेरिएबल से बना हुआ है। तो जैसे मान लो मैं अगर बोलूं p of x is a polynomial, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये एक polynomial है। Is this a polynomial? Yes, because the power of variable, the power of the dependent variable, I must say, the power of the variable is what? Exactly equal to 1. Do you find negative power of the variable? No. So this is a polynomial. I can say that p of x, another polynomial, like for example x square plus 3, this is a polynomial because the power of variable here is a whole number. Now students, tell me, is this a polynomial? Yes or no? Tell me. No. Yes, sir. Yes. Yes, sir. First of all, I'll tell you that this is not a polynomial. So because Why x do is x has power -1. Very good, absolutely correct. और जिसने नहीं बोला, करेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना है अपने आप को, सब कोई को रेक्टिफाई करना है जो भी नहीं जानते अपने लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। नहीं जानना
ट्राई करना और गलत बोल देना कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ हम लोग को दिमाग लगाना है कि कहाँ पे अपने लोग गलती कर रहे हैं। वो जो भी गलती क्लास 10 तक था वो चीज को हमको इंप्रूव करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जान रहे हो तो आराम से पूछो। मैं हमेशा जब पॉज कर दूंगा तो हमेशा इंटरेक्ट करोगे, तुम्हारा कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगा, डोंट वरी, निश्चित रहो, ठीक है ना, आराम से। नाउ जैसे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों बताओ तो, बिकॉज यहाँ पे 1/x को x to the power -1 लिख सकते हैं। So this is not a polynomial, please note down. I said you that the power of x should be a whole number. The power of the variable must be a whole number. So here it's not a whole number. The power of x is what? -1. It's not a whole number. Please make sure. So this is not a polynomial. Is this clear to everyone? So polynomial में number of terms से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं है कि उसमें एक टर्म है तो वो पॉलिनोमियल होगा, या सिर्फ 2 टर्म है तो पॉलिनोमियल होगा, या उसमें 3 टर्म है तो पॉलिनोमियल होगा। उससे अपने लोगों को मतलब नहीं है, वो अलग कंसेप्ट हो गया। वो होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आया तो बात? वो होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और अगर उसमें 2 टर्म होता है तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, एक टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म होता है तो उसके हिसाब से होता है। समझ में आया तो बात? टर्म्स का पॉलिनोमियल से रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आया तो बात? तो मैं एक बार ये क्लियर कर दूं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अभी क्लियर हुआ सबके के दिमाग में कि एक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर होल नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें कितने सारे टर्म्स है? 2 टर्म्स है। देखो हम लोगों ने क्या किया, देखो सब कुछ यूज किया, एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पे टर्म वाला भी बात यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल वाला भी बात यूज किया, वेरिएबल कांस्टेंट। समझ में आया तो बात? तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब कनेक्टेड चीज है। ओके ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब दूसरा बात पॉलिनोमियल के अंदर जानना वो ये है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? जब हम बात बोलते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम लोग p of x, लेट्स से x to the power 5 plus 3x square minus 5, ठीक है। एक काम करते हैं हम, डिग्री से पहले एक बार ये भी टर्म को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। कोएफिशिएंट, ये तो सबको क्लियर है, मुझे पता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं अगर पूछूं कि x to the power 5 का कोएफिशिएंट क्या है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Yes, 1. very good, it is 1. x to the power 5 में क्या प्रोडक्ट फॉर्म है? 1 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। देखो x to the power 5 में x to the power 5 को छोड़ के क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है? 1। तो 1 क्या है यहाँ पे? x to the power 5 का कोएफिशिएंट है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बताना एक बार? 3 है। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? X. यस यस, कांस्टेंट टर्म क्या है? 5. Not 5. 3. Anyone? -5. Yes, Minus it is 5. -5. -5. See, you are correct 5, but no, this is not actually. I should not say that this is correct. You tried, but तुमने माइनस छोड़ दिया। -5 is the correct answer. Okay, अब देखो डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले चीज ये पॉलिनोमियल है, यस बिल्कुल है। अब बताओ मुझे, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है बताओ तो एक बार। 5. तो 5 पता है ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? 5 इस पॉलिनोमियल का डिग्री है। 5 इस पॉलिनोमियल का क्या बताओ तो? डिग्री है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5. So I hope it is clear to everyone. Degree of polynomial means the highest power of the variable in that expression is called degree. अब इसके अंदर एक और टर्म्स हम बात करते हैं, वो होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरोस। ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 10 में, ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ध्यान देना। देखो पॉलिनोमियल के बाद इसके अंदर डिग्री लिखना और इसके अंदर ही जीरोस भी लिखना, ZEROES, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक बात बताओ तुम लोग, जैसे एक पॉलिनोमियल है px x plus 3, एक बात बताओगे तुम लोग, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 1. 1. अब एक बात बताओ, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको क्या पॉलिनोमियल कहते हैं बताओ तो?
अच्छा छोड़ो, वो पॉइंट पे बाद में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ पहले, ये हो गया डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताना तुम लोग, इसका डिग्री 1 है, इसका जीरोस क्या होगा, कोई बता सकता है जीरोस का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? जीरोस, इसका जीरोस क्या है बताओ तो। ट्राई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब क्लास 10 का ना वो चैप्टर था फैक्टर एंड लिमिटेड थ्योरम, उसमें था ये सब टॉपिक, याद करो तुम लोग। जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस मतलब x का वो वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, x का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो बता सकते हो x का कौन सा वैल्यू को यहां पुट करेंगे x के जगह पे तो इसको जीरो बना देगा? -3. वेरी सिंपल, इट इज व्हाट -3। देखो एक बार, अगर हम यहाँ x के जगह -3 लगा देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है बताओ तो? -3 है। समझ में आया? तो अब एक और एग्जांपल हम देते हैं, p of x equal to x square minus 4। कोई बता सकता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या क्या होगा? यस, 2 के अलावा भी कुछ और? यस -2. यस, 2 एंड -2। अब तुम लोग ने एक चीज देखा होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 था, तो एक बात बताओ इसका जीरोस कितना होगा हुआ बताओ तो? एक से ज्यादा जीरोस आए मतलब -3 के अलावा और कोई वैल्यूज आएगा जिससे ये जीरो होगा? नहीं। तो पता है जीरोस किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे डिपेंड करता है। जितना डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोस होगा। समझ में आया तो बात? जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोस होगा। मतलब इसका डिग्री 1 है, एक ही जीरोस होगा। इसका डिग्री 2 है तो कितना जीरोस होगा? 2। एक क्या है? 2 और दूसरा क्या है? -2। समझ में आया तो बात? ओके, तो यहाँ पे इसका जीरोस क्या है? -2 एंड +2। देखो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं तुमको एक जनरल आइडिया दे देना चाहता हूँ कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, कि नेक्स्ट टाइम तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। एक बार कॉपी करना थोड़ा बहुत, और मैं जीरोस के बारे में बता दूं तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार फटाफट कॉपी करो ये सारी चीज। देखो ये सारे टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है क्लास 11 में, ठीक है ना? सो आई वाज देयर इन दिस पार्ट कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर सपोज तुमको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल x² - 9, ठीक है। और मान लो मुझे इसका जीरोस जानना है, तो ध्यान से नोट करना, जीरोस का डेफिनेशन क्या होता है बताओ तो? जीरोस का डेफिनेशन होता है दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम लोग? इसको 0 से इक्वलाइज कर देते हैं, इसको ही 0 से इक्वलाइज कर देते हैं हम लोग। और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? इक्वलाइज करके हम लोग x का वैल्यू जान सकते हैं। तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +-3। ऑलराइट, अगर मान लो मैं x² को 9 से इक्वलाइज करूं तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? +-3 हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द मेथड जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो प्रोसेस ये होता है कि हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को मैं 0 से बराबर करके और उसका हम जीरोस निकाल सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, नाउ अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान देना। ध्यान देना, जैसे कि मान लो ये एक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 1 पुट करूं, if I put the value of x equals to 1, if I take the value of x equals to 1, the value which we'll get is 5. If I ask you what is the value of p of 2, then at the place of x you are going to put 2 and you are going to get what? 7 as the result. देखो मैं इस पॉलिनोमियल मैं इस एक्सप्रेशन का बहुत सारा वैल्यूज में ला सकता हूं जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा। अगर मैं x का वैल्यू 1 इस पे पुट करूंगा तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कुछ और आएगा। इसमें अगर x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कुछ और आएगा। लेकिन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान देना एक बार, अगर मान लो मुझे इस एक्सप्रेशन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए, सुनना बात को ध्यान से, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू साइन होना चाहिए बीच में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन होना चाहिए,
राइट साइड में एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ओके, अब देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब इस इक्वेशन का मतलब है कि मैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 10 जानना चाहता हूं कि x के किस वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 10 होगा। तो मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन फॉर्म कर दिया। समझ में आया तो बात, एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया मैंने, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अब मुझे मिल जाएगा x का वैल्यू 5/2 होगा। मतलब अगर x का वैल्यू 5/2 होगा, ठीक है, तो फिर ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, एक एक्सप्रेशन का n नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है। जैसे जैसे मैं x का वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि वो एक्सप्रेशन को मैंने किसके बराबर लिखा है, इक्वल टू क्या लिखा है, मैंने 10 के इक्वल टू लिखा है। तो यहाँ पे जो मुझे x का वैल्यू मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे x की जगह पुट करने के बाद देखो, यहाँ पे अगर हम x की जगह 5/2 लगाए तो इसका आंसर किसके बराबर है, 10, क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को किससे इक्वेट करके निकाला था, बताओ तो। आई एम सॉरी, यहाँ पे 3 था, मैं यहाँ पे 5 ले लिया हूँ गलती से, चलो कोई बात नहीं, चलो 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। सो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन बस नॉर्मल ये एक्सप्रेशन हो गया, और यहाँ पे अगर मान लो मैं इक्वल टू बीच में लिख दूं और लेफ्ट में और राइट में अगर मान लो एक्सप्रेशन लिख दूं तो ये क्या हो गया बताओ तो, इक्वेशन हो गया। इज दिस क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अब ये सारे एल्जेब्रिक, ये जो भी मैंने बताया तुमको, जो ये सारे टर्मिनोलॉजी बताया, ये सारे चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखें, अब तुम लोग को बताएंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, जिस फॉर्मूला को यूज करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारा फॉर्मूला क्या होता है, सो राइट डाउन एवरीवन द फॉर्मूला। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको बहुत सारे फॉर्मूलाज का जरूरत है, बहुत सारे लॉज का जरूरत है। Now I'll give you the laws, or you can say the formula, using which we can solve or simplify the algebraic expression. So write down the formula, everyone. Formula number 1: x plus y whole square. You all know that it is x square plus 2xy plus y square. Number 2, x minus y का whole square is x square minus 2xy plus y square. Can anyone tell me what is x plus y whole square minus x minus y का whole square? Anyone here? X. Yes. Minus y. Yes, anyone? X square minus y square. X square minus y square. Yes, anyone? Sir, x square minus y square whole 4xy. 2. Very good, absolutely correct. It is 4xy. Now y, it is 4xy. Please note down. x plus y का whole square है ये, और x minus y का whole square है ये। और मैं अगर ब्रैकेट हटा दूं तो यहां से y square x square कैंसिल हो जाएगा and 2xy plus 2xy will become 4xy. So what we find that x square x plus y whole square minus x minus y whole square is 4xy. ये एकदम पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लो हमको किसी भी जगह पे x plus y का वैल्यू पता है 2, x into y का वैल्यू पता है 5, और मुझे मान लो x minus y निकालना है, तो मैं x plus y के जगह पे 2 पुट कर दूंगा, x into y के जगह पे 5 पुट कर दूंगा, तो मुझे x minus y मिल जाएगा सॉल्व करके। तो ये सारे जो सिंप्लिफिकेशंस है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है ये जानना बहुत जरूरी है। सो प्लीज एवरीवन कॉपी डाउन एंड डोंट वरी उसका यूजेस, ठीक है, जहां पे यूज आएगा मैं जरूर वापस से इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए ये सारे फॉर्मूला जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज है, जो फॉर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में काम आता है, ये सारे अपने फॉर्मूला कॉपी में लिखते जाना। इसका यूज मैं वापस से बताऊंगा आगे जहां यूज आएगा इसका।
Next, formula number 4. Everyone tell me, what is x square minus y square? X plus X y plus into y, x x minus minus y. y. Very good. It is x plus y into x minus y. What is x square plus y square? क्या कोई यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव करके मुझे बता सकता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा? x plus y whole square minus 2xy. वेरी गुड. इट इज देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy. देखो यहाँ पे अगर तुमने ऐसे बोल दिया तो एक और फॉर्मूला नहीं बोल सकते? बताओ तो. यस, एक और फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम लोग. कोई बता सकता है दूसरा फॉर्म क्या है? x minus y whole square plus 2xy. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज x minus y होल स्क्वायर प्लस 2xy. देखो एक बार ध्यान से, x minus y होल स्क्वायर प्लस 2xy. समझ में आया तो बात? क्लियर है सबका? अब देखो नेक्स्ट नंबर 6. x plus y का होल क्यूब इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy into x plus y, and x minus y का होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब minus 3xy into x minus y. ऑलराइट एवरीवन, x minus y का होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy into x minus y. ओके, नंबर 8 नाउ. x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा देखना एक बार. इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो दो तरीका क्या है. एक तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y, उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy. ठीक है, अब तुम लोग मुझे दूसरा तो बताओ तो एक बार. एक तो ये हो गया फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है, फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में. एक और फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा तो बता सकते हैं? Anyone? x plus y whole cube और x plus y whole cube minus 3xy. Very good. I mean, it's absolutely correct. Since you all have used this, okay? It is x plus y का whole cube minus 3xy into x plus y. तो हम लोगों ने क्या किया, इसी को यूज करके x क्यूब प्लस y क्यूब को भी डिराइव कर दिया. तो ये सारी चीज एकदम क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 9. x क्यूब माइनस y क्यूब को हम लोग x माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy भी लिख सकते हैं, और इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. वो एक और फॉर्म क्या है, वो यहीं से तुम लोग डिराइव कर सकते हैं. बताओ तो क्या? क्लियर? प्लस 3xy into x minus y. So everyone just copy of this, okay? Now 10 number, x plus y plus z का whole square is what? It is x square plus y square plus z square plus twice in the bracket xy plus yz plus zx. And the last formula, if x plus y plus z is 0, who can tell me? If x plus y plus z is 0, then who can tell me what will be x cube plus y cube plus z cube? This is the formula you all have studied in either 7 or 8, maybe 8 I think, or 9, I don't know, in ICC, in which class you have studied. But tell me, x cube plus y cube plus z cube is equal to what if x plus y plus z is 0? Anyone? 3xyz. Very good, absolutely correct. बहुत बढ़िया. 3xyz. देखो ये सारे ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही जरूरत होते हैं. मतलब ये सारा चीज अगर तुम्हारा क्लियर है ना, तो आगे बहुत सारा सम में हम लोग इजीली बहुत कुछ सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ लॉज ऑफ इंडिसेस. एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं इनको इरेज करता हूँ. लॉज ऑफ इंडिसेस एंड सर्ट्स. लॉज ऑफ इंडिसेस एंड सर्ट्स. सो लॉज ऑफ इंडिसेस
आंसर्स। ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान देना एक बार। पहला देखो, सभी को पता है, ये मुझे कोई बताना नहीं है, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n, जब दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट फॉर्म में है या दो से ज्यादा क्वांटिटीज प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, और सबका बेसिस सेम है, तो पता है सभी को कि ये हम क्या करते हैं, इसमें पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो x स्क्वायर है और इनटू x क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, एक करके सिंपलीफाई करके X to the power x to the power 2 plus 3. ठीक है, 2 + 3 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, अगर वही मान लो डिवीजन फॉर्म में हो और दोनों का बेसिस सेम है और डिवीजन फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके x टू द पावर m माइनस n लिख देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज x क्यूब है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर 3 माइनस 2 व्हिच इज हाउ मच 1, एंड x के पावर पे 1 है, उसको हम ना भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, x टू द पावर n whole to the power n, please everyone understand, try to understand, x to the power n whole to the power n, देखो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, प्लीज नोट डाउन। इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं होता है। देखो मैंने बगल में इसीलिए ये चीज लिख दिया, बिकॉज हमेशा जो है स्टूडेंट इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। इसका मतलब क्या है, x टू द पावर n और ये पूरा का पावर n है, इसको हम क्या करते हैं इस केस में कि पावर को क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, x टू द पावर m into n बन जाता है। समझ में आया तो बात? मैं इस पॉइंट वाले पार्ट पे मैं आ रहा हूं, एक बार मैं इसका एक एग्जांपल शो करता हूं। जैसे मान लो सपोज x स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ, ठीक है ना, x स्क्वायर का होल क्यूब, तो यहाँ पे पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया तो बात? 2 के पावर पे 3 मत लिख देना, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 बन जाएगा। लेकिन अगर वही मान लो ऐसा होता, x स्क्वायर का देखो ऐसा होता अगर, तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। समझ में आया तो बात? इसका मतलब क्या बताओ तो कि x का पावर क्या बता सकते हो, x का पावर, यस इट इज 8। यहाँ पे x का पावर क्या बताओ तो 2 टू द पावर 3, जो कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देख सकते हो तुम लोग कि ये और ये चीज सेम नहीं है। समझ में आया तो बात? क्लियर हो? इसको सेम मत समझ बैठना, ठीक है। हाँ लेकिन इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, देखो, बिकॉज इसमें भी 2 3 जा 6 ही होगा और इसमें भी 3 2 जा 6 ही होगा, तो दोनों एक ही चीज है। ओके एवरीवन, नाउ द नेक्स्ट, नंबर 4, x टू द पावर माइनस n, देखो इसका पावर नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई x टू द पावर प्लस n लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब अगर मान लो किसी भी एक्सपोनेंट का पावर अगर नेगेटिव होगा और मैं उसको डिनोमिनेटर में लिख दूं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसका पावर नेगेटिव पॉजिटिव है सपोज, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूं तो उसका पावर क्या होगा, चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब सिंपल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पावर जो है वो चेंज हो जाता है अगर किसी भी एक्सपोनेंट को अगर हम डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर हम रखते हैं, जिसको हम और बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय y होल टू द पावर n को माइनस n को हम लोग y डिवाइडेड बाय x होल टू द पावर प्लस n लिख सकते हैं। मतलब देखो मैंने इस फ्रैक्शन को इंटरचेंज मतलब रेसिप्रोकल किया, तो पावर क्या हो गया बताओ तो, बदल गया, पावर नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, नंबर 6, x टू द पावर n into y टू द पावर n, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। यहां पे इसको इससे कंफ्यूज मत कर हो जाना, इसमें दोनों में ये दोनों अलग अलग चीज है। इसमें क्या था कि दोनों का बेस सेम था, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म में था बीच में, तो पावर क्या हुआ, ऐड हो गया। ये क्या है, दोनों का पावर सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x into y का होल कॉमन पावर, क्योंकि दोनों का पावर क्या था बताओ तो, सेम था, दोनों का पावर सेम था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, xy का होल टू द पावर n लिख सकते हैं इसको। समझ में आया तो बात? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का सिचुएशन है 2x
का होल क्यूब है, 2x का होल क्यूब है, तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ 2 to the power 3 into x to the power 3? समझ में आया तो बात? तो ये चीज ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फटाफट यहां तक कॉपी करना चाहिए सब। After this, it is required to know that similarly x to the power n divided by y to the power n can be written as x divided by y whole to the power plus n. Okay, next number 8. Now ध्यान देना ये वाला रूट x को हम लोग x to the power 1 by 2 लिख सकते हैं, ठीक है? रूट x को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? x to the power 1 by 2. अब एक बात बताना तुम लोग, क्यूब रूट x को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? यस, एक्सपोनेंट फॉर्म x to the power 1 by 3. x to the power 1 by 3. और याद रखना बहुत लोग क्या करते हैं कि क्यूब रूट x को एंड 3 into रूट x को गलत मतलब समझ लेते हैं। देखो ये क्या है 3 into रूट x, बहुत लोग क्यूब रूट x को क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं। देखो this is the way how they write. These they are two are different things. ठीक है, याद रखना इसका मतलब है कि x का पावर 1 by 3 and so we can generalize and we can say x to the power 1 by n. Is this clear everyone? मतलब यहाँ पे 3 है तो x to the power 1 by 3, 4 होगा x to the power 1 by 4, 5 होगा x to the power 1 by 5. समझ में आया बात? लेकिन 2 यहाँ नहीं होता है, फिर भी तुमको x to the power 1 by 2 लिखना पड़ेगा। Next, students tell me what is x to the power 0? What is anything to the power 0? Tell me. 1. Very good. Number 2. What is anything by 0? 0. No. Undefined number. Undefined. In mathematics, this cannot be defined. So that's why it is called undefined. इसको क्या कहते हैं हम लोग? Undefined कहते हैं हम लोग, ठीक है? इसको मैथ्स में डिफाइन नहीं कर सकते। 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो डिवाइड ही नहीं होगा, डिवाइड ही नहीं होगा, 0 कितना हो जाए 2 होगा ही नहीं पॉसिबल। So that's why this is undefined. And number 3, 0 by any number is how much? 0. 0. But make sure that x cannot be 0. Make sure that x cannot be 0. Don't think that 0 by 0 is undefined. No. Don't think that 0 by 0 is 0. No. 0 by any number but apart from 0 is 0. 0 मतलब अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो नंबर 0 के अलावा होना चाहिए, ठीक है? 0 divided by 0 is not 0. इस बात को समझ लेना। तो फिर क्या होता है, वो हम जैसे आगे आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे आगे आगे चैप्टर्स है, तब हम लोग वो चीज को स्टडी करेंगे कि क्या होता है 0 by 0। आज के लिए और हम आगे कुछ नहीं कराएंगे बिकॉज हम पहला दिन का क्लास बहुत ज्यादा एकदम लंबा नहीं रखना चाहते, ठीक है? आज का क्लास में इतना तक ही रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास अपने लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, बट मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट आज ही मैं स्टार्ट करने वाला था बट ये सारी चीज में बहुत टाइम लग गया, ठीक है? तो नेक्स्ट डे हम लोग एकदम डिटेल में, मतलब सोचना तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 तक आता ही नहीं है, हम वैसे स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एंगल, एकदम नॉर्मल सिंपल चीज से स्टार्ट करेंगे, एंगल क्या होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन जो है वो हम बता देते हैं, जस्ट अ मिनट।